to Doctors Speak. It's a call-in show where you can call and ask your medical queries regard to COVID-19, and our phone lines will be open for 1 hour from 2 to 3 p.m. You can call us and ask your questions. The numbers are 011-233-87031 and 011-2309-7655. You can also post your questions on the pinned tweet that you can find on the Twitter page of DD News Live and also on the Facebook page of DD News. I'm Munmun Bhattacharya and with me is my colleague Arendra Pratap Singh. शुक्रिया मुनमुन और नमस्कार दर्शकों। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से कोरोना की समस्या शुरू हुई उससे लड़ने को लेकर भी किस प्रकार से तमाम प्रयास हो सकते हैं, इंतजाम हो सकते हैं, उसको लेकर डीडी न्यूज लगातार इस प्रयास को लेकर आगे आया हुआ। दूरदर्शन परिवार लगातार लगा हुआ है। हमारी कोशिश होती है डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक उस स्थिति को बताएं जो कि साइंटिफिक अप्रोच के साथ में सिद्ध हो चुकी, जिसके बारे में तयशुदा बातें की जा सकती, क्योंकि इस समय अफवाह की भी कई प्रकार की स्थितियां होती हैं। ऐसे में कैसे कोरोना की समस्या से बचने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की जरूरत है, किस प्रकार से अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है, साथ ही साथ अब जबकि थोड़ा सा रेलवे, घरेलू उड़ानें, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से अपने आप को बचा के रखना है खुलती हुई अर्थव्यवस्था के साथ में। आप लोगों के तमाम सवाल और सुझाव जो होंगे उसको हम स्वागत करते रहेंगे और डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक उसका जवाब भी पहुंचाएंगे। So let's get started with the introduction of the distinguished panel of guests who've joined us. Joining us is Dr. Ghanshyam Pangte. He is a professor, Department of Medicine with the Lady Hardinge Medical College. Welcome, Dr. Pangte, to Dr. Speak. Also joining us is Dr. Manish K. Kanpal. He is Associate Professor, Psychiatry with RML Hospital. He's also joining us in the studio. Dr. Neeraj Gupta, Senior Specialist, Department of Respiratory Medicine, Safdarjung Hospital, is joining us as well. And Dr. Akshay Kumar, Additional Professor, Emergency Medicine, AIMS, is also with us. I welcome you all to DD News and DD India. Let's get started with a generic overview of the situation now. Dr. Pandey, how do you look at the fact that India's fatality rate has now gone down to 2.9% and a recovery rate has gone up to a little over 41%? Yeah, exactly. अभी जो condition चल रही है, so we will say कि around 2.9 to 3% is the fatality rate of this COVID-19 in India. It is almost equal to the world population, and it's maybe better than few developed countries like Italy, Spain, or maybe USA. And overall, what we are seeing that by seeing this, although it's very hopeful that we are running equal to world, but we can also say it's not very mild in India. We were initially thinking that because of hot weather and all, we may have a milder COVID here, but still the fatality rate is almost equal to world. But overall, we have more asymptomatic patients. We have more patients who have mild disease, who may not require admission in a hospital setting. But considering our at present number of cases in India is around 1.3 lakhs. So in such a big country, we are able to manage these patients at present adequately. And only patients who are slightly having a moderate symptoms or a more severe symptoms, they are getting admitted, and rest of them are managed at home by home isolation. बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आप कोई दो राय नहीं कि जहां मृत्यु का जो आंकड़ा है वो भी हिंदुस्तान में वैश्विक आंकड़े के आधार से काफ़ी कम है, तो वहीं ठीक होने की जो दर है कोरोना के मरीजों की, उसमें भी एक लगातार हम इजाफा होते देख रहे हैं। डॉक्टर मनीष कांडपाल जी, आपको किस तरह से इस बात को देखते हैं, क्योंकि भले ही हम एक तरीके से ये इन आंकड़ों के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बावजूद उसके देश और समाज में एक प्रकार का भय है इस पूरी समस्या और बीमारी को लेकर। आपको लगता है कि ओवरऑल किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है, वो लोग खासतौर से जिनको एक मानसिक आघात के तरीके से लगता है कि अरे ये तो कोरोना है? देखिए, देखा जाएगा जैसे आपने कहा कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन या अनसर्टेन सिचुएशन आती है हमारे सामने, तो उसमें एंग्जाइटी एक नॉर्मल रिस्पांस होता है। ठीक है, कुछ हद तक थोड़ी एंग्जाइटी जिसे हम कहें प्रोटेक्टिव भी होती है और ये हमको उस सिचुएशन से डील करने में मदद करती है जी। पर जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आ जाए, हम उससे जब ओवरवेल्म हो जाते हैं, तब ये हमको ये नुकसान पहुँचाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको देखनी है कि इस बीमारी में, इस महामारी में हम अकेले नहीं हैं, है ना, पूरी दुनिया में ऐसा है। ठीक है, जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे घर में, हमारी चीज़ों को, उसमें हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना है। एक दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि किसी भी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी पावर होती है उससे डील करने के लिए। पर जब बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन हम ले लें, खासकर कोरोना के संबंध में जी, है ना, तो हमको उससे भी बचना होगा। हमें ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करनी है। हमेशा हम कितने मरीज हो गए, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, अगर वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती जाएंगी तो उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा हमको इससे घबराहट और बेचैनी पैदा होगी।
तो इस सिलसिले में हमको अपने जो इंफॉर्मेशन के उसको लिमिट करना पड़ेगा कि हमको देखना है कि जैसे कोई हम जैसे कहें जो हमारे भरोसेमंद चैनल्स हैं, चाहे डीडी न्यूज़ हो, चाहे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हों, उन्हीं पे हम देखें और दिन में हम अपने आप को आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम लिमिट कर तय कर लें कि हमें 1 बुलेटिन या 2 बुलेटिन देखना है, बहुत ज्यादा देखना है, सोशल मीडिया की अफवाहों से भी बचना है। बिल्कुल बचना है जी। Dr. Kanpal, how are healthcare workers really coping up with the present times, considering the last 2 months particularly have been quite stressful for patients, yes, for the general population too, but particularly for the healthcare workers, because they've been working overtime, they've been working across shifts, and they are exposed to a lot of risk as well. Yeah, we have seen the lot of health workers have stressing. They are under tremendous stress. What we call is, and first they have the pressure to deliver. They have to take care of the persons, take care. We also understand that they are also human beings. They also face with the same situations. They have their family members. So yes, we are seeing a lot of stress, but still they are working very well and they are helping the situations, handling the situations very well and helping the society. बिल्कुल। और डॉक्टर नीरज गुप्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, अब हम देख रहे हैं किस तरीके से आज से देश भर में घरेलू उड़ानों की भी शुरुआत हुई। इससे पहले हमने देखा कि सीमित तरीके से ट्रेन्स का परिचालन भी शुरू हुआ। ऐसे में जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत, आपको लगता है कि इस सब को ध्यान रखते हुए किस प्रकार के और ज्यादा आपको सुझाव इस वक्त आपको लगता है कि देना चाहिए जनता को लेकर, कम से कम उन लोगों के लिए जो अब उड़ान के माध्यम से घरों तक जा रहे हैं या फिर ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं? नमस्कार। उड़ान के विषय में जहाँ तक आपने बात उठाई है, लोगों को डर लगता है कि उड़ान में जहाँ पे क्लोज संपर्क उनका हो सकता है और जो लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं उन लोगों के संपर्क में आने से उनको हो सकता है कि वो उनको उससे संक्रमक हो वो लोग और उनसे इन्फेक्शन हो जाए। इसके लिए एहतियात बरती गई है और इसके लिए गाइडलाइन भी इशू कर दी गई है। जिस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो बुकिंग के टाइम पे हो, चाहे वो आप बोर्डिंग के टाइम पे हो, या आप अपना सामान लेने के समय की बात हो, या आप वाजा पे बैठने के समय बिहेवियर की बात हो, उस समय थोड़ा सा डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, मास्क लगा के रखना है। इस प्रकार के सैनिटाइजेशन की हिदायतें हर प्रकार से सबको दी जाती है कि डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइजेशन उसी प्रकार की यहाँ पे भी रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक आपको ट्रैवलिंग का संबंध है, वो गाइडलाइन उसके लिए भी उसी प्रकार से इशू की गई है कि यात्रा आप करेंगे अगर गाड़ी से तो उसमें भी आप दूसरे व्यक्ति पीछे संपर्क में नहीं बैठेंगे, साथ नहीं बैठेंगे। कोशिश करें कि शेयरिंग ना की जाए। अपने सामान की आपको ध्यान रखना होगा। सामान जो है अगर किसी प्रकार के संक्रमित रोगी के संपर्क में आता है तो आवश्यकता होगा कि उस सामान की भी आप देखभाल इसी प्रकार से करें। और जैसे सामान आप अपना गाड़ी से उतार करके अगर अपने घर की ओर जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसको भी सैनिटाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको अपने साथ में सैनिटाइजेशन की प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें कोई ये कहने की बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा आपको समस्या हो सकती है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी पाठकों द्वारा या हमारे एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है, जो बीमारी होती है वो नॉर्मली बहुत ही माइल्ड किस्म की बीमारी होती है। लगभग 80% लोगों में केवल 10% या 15% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी बीमारी सीवियर होती है। तो और थोड़े से ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक भी, जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे उनसे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, तो वो आपको तो जानकारी उनसे कभी मिलेगी नहीं। इसीलिए ये सब प्रिकॉशन लेने की बात है, डिस्टेंस, वेयरिंग मास्क एंड सैनिटाइजर। और मेरा कहना यही है कि इसमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए माकूल जो आपके लिए अरेंजमेंट्स किए जा चुके हैं, जैसे कि आप दिखा भी रहे हैं जी, इस प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं जो इस चीज की ध्यान रख सकते हैं और केयर कर सकते हैं। Dr. Akshay Kumar, who is additional professor emergency medicine with AIIMS, is also with us. Dr. Kumar, are there several instances of people who are asymptomatic coming to AIIMS, for instance, for the emergency services? Are they coming in with cardiovascular problems or neurological problems, and also testing positive for COVID-19 later? And how is a hospital like AIIMS and other medical facilities dealing with this situation? Yes, so there is this slight problem where what is happening is a lot of patients who are asymptomatic or mildly sick or have atypical symptoms, that is they do not have classical symptoms of COVID-like disease and have a comorbid illness like heart disease, lung disease, chronic lung diseases, they present to the emergency department, and it's a huge challenge for the system to be able to effectively
find out these patients, segregate them from normal patients, and this is where the emergency department and the frontline healthcare workers have to play a huge role. One of the strategies which and I think should be done is use of checklist. So if you have a checklist on your in your emergency department on the arrival, wherein you can check what the patient is having, look at the symptoms exactly. If the patient is from having any typical classical signs, some atypical signs like gastrointestinal symptoms, they have a comorbid illness, and if they are from a hotspot. So if some of this is positive, then these patients should be classified as suspected COVID patients. We have seen several patients who are missed. They went into in the non-COVID areas, and then later they were tested and found to be positive. So that is a huge challenge for the system, and we must take all precautions to, and as I said, strengthening. शुरुआत की समय पर जब मरीज आ रहा है इमरजेंसी के अंदर, उस समय अगर हम चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करें, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग करें, तो काफी हद तक हम एटिपिकल प्रेजेंटेशंस वाले पेशेंट्स को रोक सकते हैं, उनकी टेस्टिंग टाइम पे कर सकते हैं। जी डॉक्टर घनश्याम, आपको लगता है कि हमने जब शुरुआत जिस समय ये पूरा लॉकडाउन की हुई, उस समय जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पे सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स थे, पुलिसकर्मी थे, सफाई कर्मी थे, लेकिन अब चीज़ें थोड़ा ईज आउट होने लगी। ऐसे में बहुत से लोग जो ऑपरेशनल जो पूरे एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए घरों से बाहर निकलने से, हम एयरपोर्ट की अगर बात करें, बड़ी संख्या में ग्राउंड स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो सब लोग निकल रहे हैं। उन लोगों को और ज़्यादा क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है तब, जबकि वो हर एक पैसेंजर्स को आने जाने के लिए उनको भी पूरा रूटीन को, प्रोसेस को फॉलो करना, साथ ही साथ खुद को भी संक्रमण से बचाना है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमने शुरू में पूरा कंप्लीट लॉकडाउन किया था। अब वी कैन से दिस इज़ अ पार्शियल लॉकडाउन। सो अब हम धीरे धीरे अपनी व्यवस्था को खोल रहे हैं। आज से जैसे कि हवाई उड़ानें शुरू हो गई हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप जिनके बारे में आपको पता नहीं है इन्फेक्शन के बारे में, अगर वो यात्री हैं जैसे, तो उनसे डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो आप 2 गज की दूरी, जो कि टर्म दिया गया है, 2 गज मीन्स अराउंड 2 मीटर्स। तो अगर आप 2 मीटर के डिस्टेंस में किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो चांसेस कम है आपको इन्फेक्शन होने के। सबको मास्क पहनने की हिदायत दी गई है, तो सबको मास्क पहनना है। अगर दोनों व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस बाय अप टू 90-95%। तो आपने मास्क पहना है, 2 गज की दूरी ली है, और जिस तरह की ये एयरलाइन सेवा है, रेलवे सेवा है, इन लोगों ने भी काफी, और मेट्रो भी जो अब खुलने वाली है, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है। जैसे कि आप एक ग्लास की एक शील्ड लगा दें, छोटा सा ओपनिंग रखे जिससे कि आवाज आए। तो अगर आपने एक शील्ड भी लगा दिया तो आप 1 मीटर पे भी आराम से बातें कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर आपको पहले से सोचनी है, जो कि हमने पिछले 2 महीने में लॉकडाउन में पूरी इसकी तैयारी कर ली है। अब हमारा ये सेतु ऐप भी आ गया है, तो उसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, आपका मोबाइल नंबर उसमें आ जाता है, तो आपके आसपास कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, जैसे कि कोई यात्री पॉजिटिव है, तो उसको यात्रा करने के लिए अभी क्लियरेंस नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर हम डिजिटल का भी उपयोग करें तो हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। और जहां पर भी जाएं आप, जहां पर वैसे आप टेबल में हाथ लगा रहे हैं, आपने दरवाजा खोला है, तो उसमें लगाने के बाद आपको हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, जिसमें कि या तो 70% अल्कोहल हो या उससे ज्यादा हो। तो वेर एवर यू हैव टच्ड, और टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स कम से कम यूज करें। अगर करें तो उसके बाद हैंड हाइजीन का पूरा ख्याल रखें, और फेस में हाथ न लगाएं। अगर आपने मास्क पहना है तो मास्क को खोले नहीं, और उसी के साथ यात्रा करें, और यात्रा के समय बाहर का कुछ न खाएं, अवॉइड करें, और मेरे ख्याल से इससे काफी सेफ हो सकता है यात्रा। In fact, questions have started coming in on social media, and one question that has been asked is that, is it safe to visit a dentist as far as an individual clinic is concerned? We are aware that several relaxations have been brought in as far as visiting dentist clinics are concerned. So would you like to respond to that, Professor Neeraj Gupta? Yeah, I will definitely. Actually, last time when we were on that meeting, there was a dentist present in the meeting, and there was also discussion on this regard. You see, there is a risk to the doctor, and the doctors can also pass infection to the patient. Obviously, it is a close contact between the doctor and the patient. The doctor needs to actually peep into the mouth and deposit in the mouth, and the chances of infections are very high. So, if possibly a person's history is known that he is not suspected or having any infections earlier, and the doctor is wearing proper personal protection kit,
I think it is a safe procedure which can be done. And of course, sanitization of the instrument also will be required subsequently to that procedure as well. But I would say only in cases where you have a very serious problem, only then you should visit the healthcare facilities these days, and preferably home treatment and utilizing the telemedicines for normal routine activities or normal routine complaints can be addressed. But yes, if it is a procedure is required and it's a serious problem, then you must visit, and then obviously the precaution needs to be taken. बिल्कुल डॉक्टर मनीष कणवाल, आपको लगता है कि एक और कहीं ना कहीं बात मन में घर कर गई है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को लेकर कि क्या मैं भी वो हो सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर कोई सिम्टम नजर नहीं आते हैं, क्या मेरा ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मैं संपर्क में रहता हूं जिसके लक्षण नजर नहीं आते, क्या वो भी हो सकता है? इसको लेकर भी मन में कई प्रकार की दुविधा चलती है। आपको लगता है कि इसको अगर कोई व्यक्ति लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है या सोच रहा है तो उसको किस प्रकार से अपने आप को इस चिंता से मुक्ति के लिए आप एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली जब भी कोई ऐसी महामारी या ऐसा कुछ आता है तो कुछ व्यक्तियों में, जिसे हम कहते हैं हेल्थ एंग्जाइटी, है ना, एक हेल्थ एंग्जाइटी एक टर्म है, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है उनको। जैसे ऐसे व्यक्ति अगर कहीं बाहर चले गए, कोई व्यक्ति उनके पास से आ गया या कहीं दूर से खांस भी गया, छींक गया, तो उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं आ गया। ठीक है। दूसरी बात, जब ऐसा महसूस होने लगता है तो कई लोगों को हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उनको चेस्ट में पेन होना, थोड़ा सा खांसी आना, तो वो सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं, जिससे उनको और ज्यादा उनको लगता है कहीं मुझे वायरस हो गया, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। तो पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर हम एडिक्वेट सैनिटेशन मेथड्स यूज करते हैं, क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, मास्क लगाते हैं, तो इसके वायरस हमको इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक चीज। दूसरी बात, कभी भी हम जाते हैं, सडनली हमको उसके बाद खांसी आ जाए या हमारा गला खराब ऐसा लगे या टाइटनेस ऑफ चेस्ट होने लगे, तो पहली चीज हमको देखनी है कि वायरस ऐसे नहीं आता है। कोई भी बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, जो जनरली इस केस में 2 से लेके 14 दिन या 4 से लेके 14 दिन तक हो सकता है। तो पहली चीज ये, हाँ, हम एक इंसान है, नेचुरली हमको जब भी ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना वो है। हमको सारे जो सरकारी तौर पे जो एहतियात है सैनिटेशन के, अपने मास्क पहनने के, वो बरतने चाहिए। और अगर फिर भी हमको कुछ ऐसी एंग्जाइटी ऐसी आती है तो कुछ हम थोड़े टिप्स जिसे हम कहते हैं वो हम कर सकते हैं जब भी हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस या बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होके। उसमें सबसे कॉमनली हम जो बताते हैं वो बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब भी हम घबराहट में या थोड़ा सा एंग्शियस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके या उसको लेके, तो हम एक सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको हमको कुछ नहीं करना होता है। हमको एक लंबी सांस लेनी है अपने नाक के जरिए, उसको 4 सेकंड तक, एट द काउंट ऑफ 4 तक हमको उसको रोकना है ऐसा लेके, और 4 सेकंड तक रोकने के बाद हमको अपने उस सांस को मुंह के जरिए एक्सहेल करना है टिल द काउंट ऑफ 4। 4 सेकंड तक हमको ऐसे दोबारा रोकना है और ऐसे 4 हमको स्टेप्स करने हैं। इससे हमको एंग्जाइटी रिलीफ होने में काफी मदद मिलेगी। कुछ चीजें जिससे हम रिलैक्स हो सकते हैं, चाहे एक गाना सुन लेना, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लेना, मोटिवेशन टॉक सुन लेना, कुछ नहीं, थोड़ा सा बरामदे में आके फ्रेश एयर ले लेना, इस चीज से भी हमको उस एंग्जाइटी के साइकिल को तोड़ने में, रोकने में मदद मिलेगी। Dr. Akshay Kumar, if you look at the global scenario, we are looking at how second waves of infection have begun. Some countries that are witnessing it are Germany, China, as well as South Korea. How can India prevent itself from being infected by second wave, considering that we are all opening up, economic activity is resuming, and that is happening in other countries as well. So how does India and other countries prevent themselves from a second wave of infection? Thank you for your question. Now, I believe that we are now looking at a new way of life. In the post-COVID era, the life of how we were, the normal way of life should change. That is moving around with masks, making sure you are maintaining distance between between people when you are outside on the roads or in the community. Second wave of infection is likely to happen, and it is, as you just mentioned, is happening in some of the countries. And the only way forward is, we cannot have a very strict lockdown now, because people have to start working, people have to go to their jobs, people have to start their businesses. So obviously we have to move on, but we have to move as just suggested by the other panelists, in a very in a way where we can
maintain social distance, continue to work, wear our mask, especially people who are at risk, like the OPDs. When the OPDs start in the hospital, the way the OPD will function will be different. There will be a screening, there should be a screening outside the OPDs. There should be a screening outside every, any area where there are a lot of people coming in. So there is going to be a lot of difference, and the world is, I think India must prepare for that, and we are already doing a lot of work, and we need to just get together and do that. बिल्कुल, हर एक व्यक्ति के लिए दुनिया एक तरीके से बदल गई है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर एक मुल्क के लिए एक नई दुनिया हो गई है इस समस्या के आने के बाद से। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब इस लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उस वक्त एक बड़ा मैसेज आया था कि अगर गैर जरूरी आपकी विजिट है अस्पताल जा सकने की तो आपको टालने की जरूरत है। क्या अब वो दौर आ गया है? खासतौर से अगर मैं बच्चों के लिहाज से समझना चाहूँ वैक्सीनेशन को लेकर, अगर अब कई लोगों ने टाला हुआ था तो क्या अब उनको जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या अब वो जा सकते हैं? सेफ है बच्चों के लिए? देखिए, दो तरह के अस्पताल हैं। एक तो वो है जिनमें कोविड के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, और दूसरे वो अस्पताल हैं जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। जो कोविड के हॉस्पिटल हैं उसमें तो आपको जो पेशेंट्स हैं वहाँ पे चारों तरफ आपके पेशेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर जो है, उनसे इन्फेक्शन का रिस्क आपको हो सकता है। तो ऐसे अस्पताल अवॉइड किए जाने चाहिए। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है जहाँ पे अगर वैक्सीनेशन की आवश्यक है वहाँ पे आप जा सकते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों को भी आपको सिखाना होगा कि मास्क लगा के रखेंगे या बच्चों को प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, और हैंड सैनिटाइजेशन या हैंड कम से कम हाथ धुलाई का अपना साधन अपने साथ रखेंगे, और प्रॉपर तरीके से उनको ढक करके लेके जाएंगे। उनको आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अगर उसकी आवश्यकता है तो। एक पहले प्रश्न उठाया गया था कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के बारे में या इन्फेक्शन के स्प्रेड के विषय में, मैं थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूँ इसमें। हमारे को जैसे आज इन्फेक्शन होता है, इस तरह से बताया जाता है कि 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और मेन टाइम 5 डेज के आसपास होता है जब हमारे सिम्टम आना शुरू होते हैं। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो 2-3 दिन पहले से और लगभग 5 या 7 दिन बाद तक इन्फेक्शन दूसरे को दे सकते हैं। उसके पश्चात उनकी इन्फेक्शन जो होता है तो वायरस बहुत कम इफेक्टिव होता है और इन्फेक्शन वो नहीं दे पाता है। क्या उनका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव भी है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज अब आ गई हैं जो क्लियरली प्रूव करती है कि 10 और 11 दिन के बाद, ऑनसेट ऑफ सिम्टम के 10-11 दिन के बाद जो वायरस होता है वो नॉन वायबल होता है, वो डेड वायरस होता है, इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको भी अभी आपको इन्फेक्शन हो गया था या जो रिकवर कर रहे थे, उनसे लोग जो कतराते हैं, दूर भागते हैं, आई थिंक उस माइंडसेट को भी चेंज करना होगा। ये व्यक्ति जो है आपके लिए खतरनाक नहीं है, और ऐसे अस्पताल जहाँ पे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उनसे भी लोग डरते हैं कि सोचते हैं कि वो भी इन्फेक्शन का एक सोर्स हो सकता है। उनसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बच्चों का संबंध है, हमेशा अवॉइड करना चाहिए, नॉन इम्पॉर्टेंट विजिट्स अवॉइड करने चाहिए। वैक्सीनेशन अगर बहुत जरूरी है, करवाना आवश्यक है तो जरूर कराइए, और नॉन कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे जाइए। रूटीन काम जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, रूटीन विजिट या छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप ना जाइए। Dr. Pangte, other than air travel, which has resumed at a limited extent from today onwards, we are also looking at how train movement is taking place to take migrants back to their native places. Besides that, bus movements have also taken place. So what are the precautions during travel that these migrant workers need to observe, other than, of course, the guidelines that are being followed as far as seating arrangements are concerned? But at a personal level, what should migrants and other travelers do? Yeah, this migrant problem is becoming a massive issue in India. I think it's almost like 1 crore population which is moving to their home state from every state. So it's such a big issue that trains are being organized, but it is taking time. So each city which has big metros are there. So everywhere there's a lakhs of population. So their government is trying their best to accommodate these patients. So they should contact maybe a railway or a health ministry, as well as there's a helpline numbers are there. So they should register their numbers, their addresses, where they want to go, because moving long distance in this summer weather can be a difficult thing. There may be a lot of complication because of summer weather. Temperatures are soaring more than 40, so heat stroke, heat cramps, they may create more problem. So they should be well hydrated. They should be given by government, as well as they should
plan their visit to whichever station they are going. So they should have adequate amount of food. They should take care of their children, how they are going to manage. So everything has to be organized by person as well as government, how they are moving, and social distancing should be taken care of. They should be have a at least 2 meters distance should be taken care of. Everyone should have at least cloth mask, not even surgical or N95, but cloth mask is adequate. जी. And although it is if possible in air travel and all, they should avoid food from outside, but still railway and all, because they are not giving food, but some NGOs and all, they are providing food to these patients. So heat stroke should be taken care of in these poor migrant population, especially during train journey. बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम बहुत भी अपने आप में काफ़ी तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर भारत में खासतौर से बड़ा बेरहम हो रखा है क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा है इन दिनों, ये अपने आप में भी एक चिंता का विषय है। डॉक्टर अक्षय कुमार जी, आप इमरजेंसी सर्विसेज को एम्स में देखते हैं, तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि उन्हें किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लेकिन उन्हें कुछ कोविड के लक्षण नज़र नहीं आ रहे, उसके अलावा किसी प्रकार की ज़रूरत है, किस प्रकार के अस्पताल में जाएं? कोविड जो हॉस्पिटल्स हैं और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनके पास दोनों विकल्प हैं तो किस तरीके का आप सलाह उनको देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको जाना चाहिए? देखिए, थैंक यू, आपका अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसको इमरजेंसी केयर की जरूरत है उसे अस्पताल आना चाहिए, पूरी अपना ध्यान रखकर, मास्क पहनकर, अपना हाथ साफ रख के, अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेकर। अगर वो मरीज किसी भी हॉस्पिटल में आता है तो ज्यादातर बड़े अस्पतालों में उनके लिए तरीके से उनका काम हो रहा है जी। जैसे कि मैं एम्स का उदाहरण देना चाहूंगा। इधर एम्स के अंदर हमारे यहाँ जब मरीज आते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले हम लोग जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स हैं और जो नॉन सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ एक सेपरेट रूम है, एक सेपरेट एरिया है जहाँ की हम नॉन सस्पेक्टेड, जो कि जिनको सस्पेक्ट नहीं है, उनके लक्षणों से, उनकी बात करने से हम उनको एक अलग रूम में ले जाते हैं। एक बार वो अलग रहते हैं, जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए एक अलग एरिया बनाया गया है, वहां पर हमारी स्पेशल टीम रहती है जो पीपीई पहनकर, मास्क N95 मास्क पहनकर पूरी तरह तैयार रहती है। तो नॉन कोविड पेशेंट्स को अगर इमरजेंसी है उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपना N95 अपना मास्क, सर्जिकल मास्क अपने हाथ करके, मिनिमम रिलेटिव के साथ, एक रिलेटिव हो तो बेहतर है, हम लोग एक ही रिलेटिव को अंदर अलाउ कर रहे हैं ताकि भीड़ कम लगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, और हम उन पेशेंट्स को अंदर लेते हैं एक अलग सी क्यू, एक अलग सी लाइन में, और एक अलग एरिया में उनका ट्रीटमेंट होता है। कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एक अलग एरिया में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई मिक्सिंग नहीं की जा रही है। जहां तक मैं जानता हूं ज्यादातर अस्पतालों में इस तरह से ही काम हो रहा है। ऑब्वियसली अगर डेडिकेटेड कोविड सेंटर है तो उस समय आप कोविड पेशेंट्स ही वहां पे जाएंगे। अगर फुल हॉस्पिटल है तो वहां कोविड नॉन कोविड भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वहां पर आपको फुल प्रूफ, मतलब आपको सेपरेट रखा जाता है, सेपरेट एरिया में रखा जाता है। कोशिश करिए आपका काम जल्दी से निपट जाए, आप जल्दी से अस्पताल से रिलीज हो जाएं, जितनी जल्दी, क्योंकि अस्पताल एक हाई रिस्क एरिया है फॉर श्योर, डेफिनेटली। तो जितनी जल्दी आप वहां से आपको छुट्टी मिल जाए, आपका इलाज हो जाए, आपका काम हो जाए, आप वहां से घर की तरफ निकल आ जाए। सो ये मैं कहना चाहूँ। Well, Dr. Akshay Kumar, we are seeing that temperatures have risen significantly. The summers are well here. So, would you say that this is enough proof that there is really no link between increase in temperatures and the virus weakening, and there is really no impact that temperature change would have on the life or the virulence of the virus? So this has been a very hot debate right from the start, right from when it started in India. I remember attending one of the webinars and one of the talks at AIIMS, and we were, some of the senior doctors were appearing very confident that it may not come into India because of the high temperatures which we're expecting in April onwards. But unfortunately, that's not proving right. We are still seeing a surge in patients, and though the temperature is still rising, we are continuing to see new and new cases that actually increase, and actually a lot of increase in patients of COVID patients. तो अभी कोई substantial evidence नहीं है कोई कि ऐसा कि हाई टेम्परेचर से हमारा कोविड रुक जाएगा। हम होप कर रहे हैं कि उस तरह से नहीं बढ़ेगा, और ये आने वाले एक महीने में हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये कोविड हमारे देश में बढ़ेगा। जी,
डॉक्टर घनश्याम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पर? 2 दिन पहले जैसे नई दिल्ली में नया गवर्नमेंट रूलिंग आई है, जैसे हमने डिवाइड किया, डॉक्टर अक्षय ने आपको बताया कि कोविड नॉन कोविड 2 अस्पताल है। तो ये तो क्लियर कट है कि जैसे नई दिल्ली में कोविड अस्पताल LNJP है, लोकनायक हॉस्पिटल, और राजीव गांधी अस्पताल, वो सिर्फ कोविड है, वहाँ बाकी मरीज नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने देखा है, और जो रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज दिल्ली में 500-600 केस, सिमिलरली इंडिया में 6 से 7 हजार केसेस आ रहे हैं। तो जो बाकी के नॉन कोविड अस्पताल हैं, अब वो नॉन कोविड नहीं रहे। अब जैसे दिल्ली में ऑर्डर आ गया है 2 दिन पहले, 20% बेड्स सबको, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को देने हैं एज अ कोविड बेड्स। तो अब वो नॉन कोविड नहीं है, दे आर मिक्स हॉस्पिटल नाउ, दे आर कोविड प्लस नॉन कोविड, दे हैव टू टेक कोविड पेशेंट्स आल्सो। सो अब सारे अस्पताल एक तरह से कोविड के पेशेंट लेंगे। 20% इवन प्राइवेट में, गवर्नमेंट तो ले रहे हैं, जैसे हमारा अस्पताल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, हमारी इमरजेंसी में कोविड और नॉन कोविड के 2 विंग है। अगर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आता है या सिम्टम्स लेकर आता है तो उसको कोविड इमरजेंसी में पहले देखा जाता है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से उसको बताया जाता है कि आपको होम आइसोलेशन अगर अवेलेबल है, आप ठीक हैं, माइल्ड सिम्टम है, आप घर जा सकते हैं। जबकि जो मॉडरेट सिम्टम्स है, जो सीवियर सिम्टम, उसको हम एडमिट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई और पेशेंट है जिसको कि सर्जिकल कॉज है, किसी को एपेंडिसाइटिस है जो कि कोविड नहीं लग रहा है, तो उसको नॉन कोविड इमरजेंसी में देखते हैं। तो अब हमें, क्योंकि केसेस बढ़ते रहेंगे और ये अभी वी वांट से इट्स सेकेंड पीक, अभी तो हमारा फर्स्ट पीक आने के अगले महीने 2 महीने में आ जाएगा। तो हम पहले पीक की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बिकॉज वी हैव फ्लैटेंड द कर्व and all hospitals are now mixed hospital. They are COVID plus non-COVID. There is no non-COVID hospital at present. डॉक्टर मनीष खंडवाल, आपको लगता है एक सवाल जो है वो पेरेंट्स के मन में अपने बच्चों की जो मानसिक स्थिति है, बना स्थिति, उसको लेकर भी चिंता है कि बच्चे भी अब इतना ज्यादा दिनों से घरों में बैठ के कोरोना के बारे में एक तरीके से उनके मन में भय बैठ गया, उसको लेकर भी पेरेंट्स चिंतित हैं और बच्चों के मन में भी कई प्रकार के ख्यालात आते हैं कि उनके स्कूल कब खुलेंगे, वो घर से बाहर कब जाएंगे। उनको लिया क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि एक तो हमको कि बच्चों के साथ है ना, जैसे बच्चों का हम देख रहे हैं कि बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी रूटीन इस कोविड की वजह से चेंज हो गया है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो मिलते थे, जो होता था, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले चीज़ ये रखनी है कि हमको बच्चों का एक रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चरिंग करनी है उनके शेड्यूल की जी। और ये चीज़ उनको नज़र में लेके या उनके साथ मिलके वो प्लान बनाना है। पहली चीज़, बच्चों को एज अप्रोप्रिएट हमको इन्फॉर्मेशन देनी है कोविड को लेके। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल डरा दें, उनको वो कर दें, पर जो भी इन्फॉर्मेशन हमको देनी है लिमिट में देनी है, और एक्चुअल साइट्स जो भी अच्छी साइट्स हैं उसमें, और साथ बैठ के उनको देनी है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हमको ये करना है कि इसका एक इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं कर पा रहे थे, उसका एक फ़ायदा उठा के हमको बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज़ करनी है, थोड़ा सा उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके। और एक बात हम ये भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे हैं, सोशल मीडिया का है, अब कई क्लासेस वगैरह उनकी सोशल प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, तो बच्चे कुछ हद तक तो उसमें बिजी हो जाएंगे, तब उसका वो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास अगर बहुत सारा टाइम है तो बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हैं, चाहे वो पेंटिंग है, आर्ट है, इट कुड बी म्यूज़िक, सिंगिंग, तो हम उस चीज़ में बच्चों का ध्यान वो कर सकें, ताकि जो वो टाइम जो खालीपन उनके मन में है, जिसमें वो नेगेटिविटी विचार आ जाते हैं, वो उस चीज़ से वो बचे रहें। Professor Neeraj Gupta, questions that have come in on social media are quite a few, and one of them is that I have a hurtful throat since 67 days without fever, cough, shortness of breath, muscle ache or loss of smell or taste. So just a hurting throat without these symptoms. And he says that he doesn't have a travel history as well. What should I do? Please advise. Yeah, see, the travel history is not important anymore because of the infection spreading from other people also. But as you have narrated that this person is having sore throat or the problem in his throat for about 67 days, or 6 to 7 or 67? 67. Yeah, so that means it is not related to this coronavirus infection or COVID disease. It is something different and he needs to be examined by ENT expert. Dr. Ghansham has already mentioned that the fine distinction between the COVID and the non-hospital is gradually disappearing very fast because of the influx of newer and newer cases, and now it has become mandatory that all hospitals will then be treating both COVID and non-COVID, which means that we will be needing segregation of these patients, a pathway separately for COVID and non-COVID suspected patients, and the OPDs, routine OPDs will also be then started very soon.
Our hospital is already running the ENT OPDs and other routine OPDs as well. This person, if he wants, he desires, he can visit any of the hospital, get his throat checked up. There is something wrong with his throat, it needs to be examined, and the treatment prescribed for this. It is definitely not related to anything COVID. ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपने की। डॉक्टर घनश्याम पांगटे जी, एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि अब जब चीज़ें धीरे धीरे ईज आउट हो रही हैं, ऐसे में कई चीज़ें खुलने की शुरुआत हुई, लोगों को डोमेस्टिक हेल्प भी, अब लोगों ने घर पे मेड्स की बात हो या ड्राइवर्स की बात हो या कार वॉश करने वाले लोगों की बात हो, अब उनके आने का भी सिलसिले की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। इस प्रकार के खुलते हुए वातावरण में और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? अगर आपके यहाँ कोई डोमेस्टिक हेल्प घर पे आ रहा है, मेड घर पे आ रही है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज हम लोग काफ़ी मेड्स और हेल्पर्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। कार्स वार साफ करना तो फिर भी काफ़ी दूरी मेंटेन रहती है, लेकिन घर में जब मेड्स आती हैं दैट इज़ अ बिग इशू। सो मेड्स की फैमिली वहाँ पर ओवरक्राउडिंग हो सकती है, जो कि इन्फेक्शन आपके घर आ सकता है। तो हमें वहाँ पर भी वही प्रिकॉशन लेने चाहिए। अगर मेड को कोई सिम्टम्स है, अगर मेड को खांसी आजकल वो कहती है, उससे पहले पूछ लें, फोन पे ही पूछ लें। अगर आपके घर में किसी को ज़्यादा खांसी हो रही है, किसी को ब्रेथलेसनेस है, या किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, या कोई ऐसे कांटेक्ट में आया है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो उस मेड को छुट्टी दे दें 10 से 14 दिन की, और उसको घर में न बुलाएं। अगर घर में ऐसा कुछ नहीं है तो वो आ सकती है। अगर वो घर में आती है तो उसको आने से पहले चेक करें कि बुखार उखार, उसको दरवाजे से पहले ही चेक कर लें। उसको भी मास्क पहनने के लिए अपनी तरफ से मास्क दे दें, बिकॉज मास्क फ्री नहीं है अभी। एवरी मास्क कॉस्ट 15-20 रुपीज़, विच इज़ गुड एनफ फॉर दीज पुअर पीपल। सो आप मास्क उनके लिए रेडी रखें, और मास्क लेके फिर भी आप दूरी रखें। किचन विचन में और सफाई का काम वो करती हैं, तो आप जितना हो सके बच्चों को, एल्डरली को दूर रखें, अलग कमरे में रख सकते हैं जब वो वर्क कर रही हो। और जितना शॉर्ट टर्म के लिए मेड को रखें उतना बेटर है। और उनको हैंड हाइजीन के बारे में बताएं, उनको सैनिटाइजर अवेलेबल कराएं अंदर आते ही, और हर काम के बाद सैनिटाइज करवाएं। और जितनी जल्दी आपका काम हो जाए तो आप उसको घर जितनी जल्दी भेज सकें। बट इफ पॉसिबल, अगर आपके घर में उतना ज़्यादा काम नहीं है तो लाइक मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज दे डोंट हैव मेड। सो इफ पॉसिबल, जैसे कि गवर्नमेंट और सभी करें, आत्मनिर्भर बने। तो अगर आत्मनिर्भरता से काम चल जाए तो ठीक है, otherwise we do have to take some help from our maids. Dr. Kanpal, one social media user is asking that being a father of an autistic boy, what preventive measures should I take at home? There's no as such preventive measures to be taken for an autistic boy. The only thing is if he is also having hyperactivity, then these patients or these persons are likely to be slightly difficult to manage at home. So he had to restructure and reschedule his activities. So try to engage him some engaging activities, like some puzzles or some crayon activities or some clays activities. So these can be. Otherwise, there is no specific. These are not prone, or they can be, as we said, they are more prone for this illness. It's nothing like this. But because of his hyperactivity, all these things, they are slightly difficult to manage at home. So they have to restructure and reschedule the activities so that he can be kept busy at home. एक हिंदी में सवाल आया है प्रोफेसर गुप्ता, वो ये है कि काम से घर पहुंचने के बाद क्या किया जाए? क्या स्नान करना ज़रूरी है? कपड़ों को बाल्टी में पानी में भिगोना ज़रूरी है इन्फेक्शन हटाने के लिए, या कपड़े धोने पड़ेंगे इन्फेक्शन हटाने के लिए? क्या करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा एक नॉर्मल यूजुअल क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जब हम काम से लौट के आते हैं या हम शॉपिंग करके आते हैं या ऐसी जगह से आते हैं जहाँ से हमको लगता है कि हमको आके इन्फेक्शन हो या किसी से कांटेक्ट होता है, तो उसके पश्चात घर आने के बाद क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि आप अगर यूजुअल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपको वैसे तो रिस्क कम होता है। फिर भी आपके कपड़ों में, आपके जूतों में हो सकता है कि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके कुछ कीटाणु उसके ऊपर रह जाए। तो ऐसी स्थिति में जो प्रिकॉशन है लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जूते या शू वियर ऐसे रखिए जो कि इजीली क्लीनेबल हो, या आप उनको बाहर घर पे उतार दीजिए। घर के अंदर आप आए हैं तो बिना किसी चीज़ को छुए सीधा अगर बाथरूम में जा सकते हैं तो जाइए। कपड़ों को बहुत सावधानी से उतारिए, इस तरह से उतारिए कि कपड़े उल्टे हो जाते हैं, तो ऐसे कर लीजिए। कपड़े जो है बाल्टी में साबुन के पानी में अगर इसको डिप कर दीजिए। अपना मास्क जो है उतारने के पश्चात को सेफ जगह पे रखिए, उसके पश्चात हाथ धोइए। और अगर लोग स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं, किंतु हाथ और मुंह धोना और आवश्यक होता है।
इसके अलावा किसी और प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। अभी एक प्रश्न मेड के लिए भी पूछा गया था इसी प्रकार से। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से घरों में हमारे ओल्ड परिजन्स भी रहते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी हो सकती हैं, काम कराना आवश्यक होता है। क्या उन व्यक्तियों के साथ में जो मेड आती है उनके साथ भी कुछ इसी प्रकार की प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है? क्योंकि हो सकता है कि वो बसों में ट्रेवल करके आई हो सकता है कि वो ऐसे रास्ते से आई हो जहाँ पे संक्रमण या किसी व्यक्ति के संपर्क में भी हो सकता है वो आ गए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में भी ऐसे बताया गया कि मास्क दे सकते हैं। मैंने एक सुझाव रखा था, ये बात कल हमारी फैमिली डिस्कशन में भी बात उठी थी ये बात। तो हमने यही उनको सजेशन दिया था कि आप उनसे कहिए कि वो अगर अपने 2 पेयर कपड़े रख सकते हैं तो आइए पहले अपने वो कपड़े यहाँ पे जो है उसको चेंज करके उसको धो के डाल दीजिए, मास्क लगा करके हैंड सैनिटाइज करके आप घर में अपना सारा काम कर लीजिए और उसके पश्चात उन्हीं कपड़ों के साथ चले जाइए। जब वो आएंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर वो धुले हुए कपड़े ही पहने। तो इस प्रकार हो सकता है कि उनको कपड़ों से उनके संक्रमण होने की संभावना कम हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर अक्षय कुमार जी, एक सवाल आपसे मैं समझना चाहता हूं कि अब देखा हमने जब आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हुई है तो जिन डेस्टिनेशन में लोग पहुंच रहे हैं, जिन जिन राज्यों में, वहां के अलग अलग नियम है। 14 डे क्वारंटाइन की बात की गई है जिसमें कई जगह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है तो कहीं पे होम क्वारंटाइन की बात की गई है। किस तरीके से क्वारंटाइन के समय खास तौर से लोगों को एहतियात बरतने की जरूरी है, स्पेशली तब जबकि अगर उन्हें घर पे क्वारंटीन करने की बात की गई है तब क्या ज्यादा उनको एहतियात बरतने की जरूरत है? थैंक यू। देखिए, 2 तरह के क्वारंटाइन हैं। एक है घर पे क्वारंटाइन, एक है जो क्वारंटाइन गवर्नमेंट फैसिलिटी में क्वारंटाइन। तो जहां तक कि गवर्नमेंट फैसिलिटी के क्वारंटाइन का है, वहां पर गवर्नमेंट ने अपना क्वारंटाइन रूल्स बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्वारंटाइन फैसिलिटी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि बेड की दूरी 1 से 2 मीटर होनी चाहिए मिनिमम, 2 बेड्स के बीच में दूरी। डेडिकेटेड टॉयलेट होना चाहिए उन लोगों के लिए जो क्वारंटाइंड हैं, और जो खाना है वो एक तरह से आएगा, एक समय पे आएगा। जो हेल्थ केयर स्टाफ उन क्वारंटाइन लोगों को असेस करेगा वो उनसे दूरी बना के रखेगा, वो मास्क पहनेगा। उसके लिए एक स्पेशल जो उनका पीपीई है जो उनको पहनना है वो भी गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट्स पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेबसाइट पे स्पेसिफाई किया हुआ है जी। नाउ होम क्वारंटाइन की जहां बात आती है, होम क्वारंटाइन देखिए इसमें अपने ऊपर आती है। सारे जो व्यक्ति अपने ध्यान रखना है, अपने घरों के अंदर अलग कमरे में रुकना है जी। अगर आपके परिवार में गर्भवती महिला है या एल्डरली लोग हैं, उनसे नहीं मिलना जुलना है, बच्चों से दूर रहना है। एक अलग रूम में, एक वेंटिलेटेड रूम में आइडियली, सो दे सजेस्ट कि एक सेपरेट रूम हो जिसमें एक सेपरेट वॉशरूम हो, वेंटिलेटेड रूम हो। आप मास्क पहन के रहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप सेम टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हैं, बट थोड़ी दूसरी तरफ या एक दूसरी तरफ बैठ के खाना खा लें। और कोशिश करिए कि आप कॉमन एरिया में ना, उसी रूम, जिस रूम में आप रह रहे हैं उसी में खाना आपको अगर परोस जाए तो वो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल, जो कुल मिला के गाइडलाइंस है उनको पालन करने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंजीत समस्तीपुर से। मंजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल डॉक्टर से ये है कि हमको ये कोरोना से जीवन भर रहना पड़ेगा, इसकी कोई दवा आएगी कि नहीं आएगी? जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कई लोगों के मन में है। डॉक्टर घनश्याम पांगटे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोरोना हमारी जीवन का हिस्सा बन चुका है, हमें इसके साथ अब जीना सीखना होगा? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आई थिंक सभी के दिमाग में चल रहा है कि क्या कोरोना जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। बट इतना हमें मेरे ख्याल से दुखी होने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से रैपिडली साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, हम मे बी अगले कुछ महीनों में इसका इलाज ढूंढ लेंगे, और इफ पॉसिबल अगर हम खुशकिस्मत रहे तो मे बी विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर हमें इसकी वैक्सीन भी मिल जाएगी। वैक्सीन से ये होता है कि अगर आप वैक्सीन लगा लें और ये वो इफेक्टिव वैक्सीन है, तो आप अगर वैक्सीन लगा लें और उसके कुछ हफ्तों में आपके पास इतनी इम्यूनिटी बन जाती है, आपके शरीर में इतने डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं कि वो इन्फेक्शन नहीं होता। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगले 6 महीने में, 1 साल में हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कितने सक्सेसफुल होते हैं इसको बनाने में। बट बिकॉज जिस तरह से ये डिजीज धीरे धीरे पीक कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में हमारे पास लगभग 1 लाख इन्फेक्शन हो गए हैं पॉजिटिव, और 50,000 60,000 लेकिन ठीक भी हो गए हैं। तो आधे मरीज हमारे यहाँ रिकवर कर गए हैं, 40 से 50%। तो इतनी बहुत तकलीफ वाली बीमारी भी नहीं है, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती है।
लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हम अभी 1 लाख की बात कर रहे हैं पॉजिटिव पेशेंट्स की, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, आप सोच सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये 6 महीने 1 साल धीरे धीरे प्रोग्रेस करे। तो हमें, जैसे कि बाकी हमारे पैनलिस्ट ने बताया है, कि कोरोना के साथ हमें रहने की आदत बनानी पड़ेगी, मास्क की यूज करने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, हैंड सैनिटाइजर, हाथ साफ रखने की, ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेगी अगले 1-2 साल तक। पर चांसेस है कि 1 साल 2 साल के बाद हम थोड़ा बहुत, अगर वैक्सीन बन जाए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं, अगर आप देखें तो हाथ साफ करना, ये सब will be a good health things which should be continued, social distancing also। तो अभी हमें हम होप करते हैं कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ हमारे पास कुछ वैक्सीन आ जाएगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Another caller has joined us. Vasudev Gupta joins us from Delhi. जी वासुदेव जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली अभी इतना गर्मी की मौसम में मैं कुछ अभी एसी कितना हार्मफुल है ये कोविड के बारे में, जैसे कि अगर सेंट्रल एसी कहीं पे चल रहा है तो ये हार्मफुल है, या घर में हम लोग एसी चला सकते हैं, या ठंडा पानी पीने से कुछ असर होगा? डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि एसी को लेकर बड़ा मन में भ्रम रहता है, विंडो एसी, स्प्लिट एसी और सेंट्रली एसी, हर तरीके के एसी को लेके। देखिए, अगर हम इसको इस प्रकार से देखें कि हम 3 प्रकार के एसी हो सकते हैं। एक जो आप घरों में प्रयोग में लाते हैं, दूसरा ऑफिस में जहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हो सकती है, और तीसरा अस्पतालों में जहाँ पे कि मरीजों का, कोविड के स्पेशली मरीजों का इलाज किया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में एसी का क्या किया? जो घर की एसी का संबंध है उसके लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर में एसी यूज कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच में रखना होता है, और ये कोशिश रहती है कि आपकी खिड़की थोड़ी सी खुली रखनी चाहिए, या कोई ऐसा दरवाजा या खुला रखना चाहिए जिसकी वजह से जो आपकी हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाए, और इन्फेक्शन का अगर जो पॉसिबिलिटी भी होती है वो थोड़ी बहुत उससे डायल्यूशन की हवा की वजह से खराब हो जाती है। तो उसकी ह्यूमिडिटी भी 40 से 70% के बीच में रखी जानी चाहिए। जहाँ तक ऑफिस के एसी का संबंध है, उसके विषय में अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, जिसको कोविड डिसीज नहीं है, तो ऐसे में इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा बिल्कुल मामूली होता है। और स्पेशली अगर उसमें हेपा फिल्टर्स या फिल्टर्स लगे होते हैं। हेपा फिल्टर हर जगह नहीं होते हैं, वो केवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लगाए जाते हैं। वो जहाँ हेपा फिल्टर होता है वहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहता है, लेकिन जहाँ पे हेपा फिल्टर नहीं होते हैं वहाँ पे थोड़े दूसरे फिल्टर्स होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो। अगर कोई इन्फेक्टिव व्यक्ति वहाँ आता है, उसके लिए भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि उसमें सेंट्रल एसी में जो मेंटेन करती है एजेंसी, उसमें इनटेक हवा को बंद कर दिया जाता है, 12 से 14 एक्सचेंज पर घंटे की जाती है, और फ्रेश एयर उसमें डाली जाती है, जिसकी वजह से वो डाइल्यूशन हो जाता है और एसी से स्प्रेड का खतरा कम हो जाता है। जहाँ तक हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का संबंध है, उसमें बहुत समस्या हो सकती है कि जहाँ पे कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स अगर सेग्रीगेटेड नहीं है या सस्पेक्टेड एरिया में है, वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ द एयर की वजह से स्प्रेड हो सकता है। वहाँ पे आपको आवश्यक है कि ये देखना कि मिक्सिंग नहीं होती है। गाइडलाइंस फिर भी वही है, और उसमें कुछ डिसइंफेक्शन की भी आजकल बात कर रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट UV-GI सिस्टम लगा करके, या आयनाइजर लगा करके, या नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन करके किस प्रकार से वो। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे कमरे में एसी चलता है वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, और जिसकी हवा जो है वो ड्रेन जहाँ पे की जाती है उसको डिसइंफेक्ट पहले किया जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन एनवायरनमेंट को स्प्रेड ना कर सके। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, टेक्निकल है, लेकिन एयर कंडीशनिंग यूज की जा सकती है, और घरों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। There's another caller who's joined us. Krishna has joined us from Sonipat. जी कृष्णा जी, पूछिए अपना सवाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि कैसे सब्जियां खरीदते हैं, फिर उनको कैसे धोकर कैसे यूज करें, मतलब धोकर उसे किस टाइप से? आप फिर से पूछिए अपना सवाल, आपकी आवाज साफ नहीं थी। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि हम जब सब्जियां खरीदते हैं जी, तो उनको कैसे यूज करें, मतलब धोए कैसे वॉश करें इस पेंडेमिक में, मतलब ये घनश्याम, और सब्जियों के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि आप बाजार से लेके आ रहे हैं, कहाँ एक्सपोजर के साथ उनके साथ में संक्रमण हो सकता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए बाजार से सब्जी करके आए इस्तेमाल? तो कैसे, मतलब जी आपका सवाल आ गया हमारे पास, हम डॉक्टर साहब से उसका जवाब ले रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारे पिछले पैनलिस्ट ने भी बोला, तो हम ट्राई करें जब भी हम जाएं तो सिर्फ आवश्यक चीज़ों के लिए ही जाएं। ट्राई करें कि एक ही बार में सब चीज़ कर लें। तो आप सब्जी लेने जा रहे हैं या कुछ और आपको पैसे लेने जाने हैं एटीएम में, तो आप एक साथ करें। जब सब्जियां लेकर आएँ आप बाहर से, तो एक बाल्टी में धो लें। तो नॉर्मली आप साफ पानी से धो लें, बट कुछ
स्टडीज में ये बताया कि सोडा बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं आप, उससे आप सब्जियां धो सकते हैं, उसके बाद यूज कर सकते हैं। और जब आप कमरे में आए तो आपको वही हैंड हाइजीन और जो आपको अपने शूज और चप्पल्स हैं उसको वॉश करना है, और उसके बाद ये जब सब्जियां बाल्टी में धो लें सारी, उसके बाद ही यूज करें। और ट्राई टू अवॉइड ईटिंग अ रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां अवॉइड करें। और सब्जियां धोने के बाद आप साबुन से हाथ धो लें या फिर आप कोई सैनिटाइजर यूज कर लें। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल वाटर या फिर आप सोडा बाइकार्ब या थोड़ा सा अल्कलाइन सिस्टम यूज कर सकते हैं। Professor Neeraj Gupta, another question that has come in is of a person who's saying that he's having cough on and off from the last 10 to 15 days, like it remains for a day or two and then goes away and then comes back after 2 to 3 days. So is that person a COVID-19 patient suspect? No, I think the person having intermittent coughs, which is not a persistent kind. Usually in COVID, we have a dry cough, which is very, very persistent, and that is also accompanied by other features of the disease, like high fever, body ache, headaches, or other symptoms also. In this situation, having pure cough, that too intermittent, and that too for about 10 to 12 days, needs examination. Possibly the person is having some bronchitis or maybe asthma or something, and he needs to be seen by an expert and decide on this. He will require medication for this. And in any case, even if it is a COVID infection, people having COVID disease, person having fever and cough, they are also eminently treatable, as has been discussed multiple times, that 80% of the patients usually do require only very simple medication and they do recover. So there is no need to worry as such on that front. And this patient personally who is having 10 to 12 days cough, which is intermittent, needs to be examined. There's possibility for bronchitis or some other ailment. बिल्कुल, समय हमारा खत्म हो रहा है। डॉक्टर अक्षय कुमार, एक जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे, टेस्ट कब कराना है, किसको कराना है, इसको लेकर भी मन में कई प्रकार के भ्रम रहते हैं। अगर आप संक्षेप में समझा सकें कि किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। आपने पूछा टेस्ट किसको कराना है? जी जी, सो देखिए, टेस्ट की गाइडलाइंस कंटिन्यूसली पिछले 2 महीने से चेंज होती रही हैं। जहां तक लेटेस्ट गाइडलाइन आईसीएमआर इसकी गाइडलाइन बनाता है, तो आईसीएमआर ने ये लिखा हुआ है कि 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक होता है आईएलआई सिम्टम्स, व्हिच इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब जिस मरीज को बुखार हो रहा है, साथ में खांसी है, और वो मरीज किसी हॉटस्पॉट एरिया से है, वो मरीज कोई हेल्थ केयर वर्कर है, वो मरीज कोई ऐसे मरीज के कांटेक्ट में था जिसको कि कोविड पॉजिटिव निकला, वो मरीज, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स हुए हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, और ये 3 चीजें वो कर रहा है, उनको डेफिनेटली टेस्टिंग होनी चाहिए। या तो वो हॉटस्पॉट एरिया से हैं, या वो किसी के कांटेक्ट में थे जिसको पॉजिटिव है, या वो ट्रैवल हिस्ट्री है, ऑल्दो ट्रैवल हिस्ट्री अब है नहीं किसी की, बट गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, या कोई पेशेंट जिसको सारी लाइक सिम्टम्स हैं, जैसे कि सारी मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जैसे कि कफ, खांसी, बुखार, और इतना ज्यादा खांसी बुखार कि उसको अस्पताल की जरूरत पड़े बिकॉज उसको ऑक्सीजन की कमी है या सांस फूल रही है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अस्पताल आ रहा है इस समय, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए जी। और अगर कोई मरीज नॉन कोविड पेशेंट है और आपके मान लीजिए अस्पताल में भर्ती है, नॉन कोविड एरिया में है, और उसको खांसी, बुखार या इस तरह के लक्षण हो रहे हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए आईसीएमआर के नई गाइडलाइंस। ठीक है, Absolutely. So those testing guidelines keep changing on and off. People can also log on to Google or go to the ICMR website and also Health Ministry's website to know the frequent changes that keep happening as far as testing is concerned. Rajesh is joining us from Odisha. Rajesh जी, पूछिए अपना सवाल। सर, क्वेश्चन पूछना था कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं? मेरे नॉलेज में 300 प्रकार के वायरस होते हैं। क्या सभी का वैक्सीन बन गया है? हम तो सभी का वैक्सीन लेते नहीं है, तो क्या इस वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करने की आवश्यकता है, या जो हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं यही करना चाहिए हमें ज्यादा? प्रोफेसर नीरज गुप्ता। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वायरस तो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जानलेवा नहीं होते हैं, बहुत ही माइल्ड बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं या किसी प्रकार का आपको डैमेज कर सकते हैं, जिससे कि परमानेंट आपको इंजरी हो सकती है। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि पोलियो वायरस था, या स्मॉल पॉक्स था, या चिकन पॉक्स से आपको इंजरी होती है, या आपको टेटनस है, आपको डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है। ये इस प्रकार के कुछ बैक्टीरिया वायरसेस हैं जिनसे कि आपको जीवन का खतरा होता है, तो उन्हीं के लिए वैक्सीनेशन
बनाई जाती है उसी पे वैक्सीनेशन इफेक्टिव है। और इसका असर ये है कि आप स्मॉल पॉक्स देखिए इरेडिकेट हो चुकी है, पोलियो भी इरेडिकेट हो चुकी है और बहुत सी बीमारियां अंडर कंट्रोल रहती हैं। जहाँ तक ये वाली वायरसेस की संबंध है, H1N1 इन्फ्लुएंजा है, ये भी आप वायरसेस की वैक्सीन बनी हुई है जिससे कि बड़े बूढ़ों में जिनमें ये जीवन का खतरा पैदा करती है उसको वैक्सीनेशन से फायदा होता है। ये कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन भी इसी प्रकार बनाई जा रही है। जबकि मालूम है कि आपको लगभग 55 लाख पेशेंट जो अभी तक इससे पीड़ित हो चुके हैं और कितने लाखों लोग मर चुके हैं। तो इसलिए ये भी वैक्सीन भी जब बन जाएगी तो काफी हद तक लोगों को जीवन दान दे पाएगी और लोगों को मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से बचा पाएगी। तो वैक्सीनेशन जितनी आवश्यक है इसलिए बिल्कुल, वैक्सीन हो या दवा हो, जब तक वो बन के आती तब तक हमको इसके साथ में संघर्ष करते रहना पड़ेगा। उसका सबसे कारगर उपाय यही है कि आप हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और किसी भी प्रकार के संभावित संक्रमण से अपने आप को, अपने परिवार को दूर रखिए। यही सबसे ज्यादा सटीक उपाय है आज के इस वक्त में। The health minister keeps saying that social distancing is a social vaccine we have until we have a proper vaccine. Well, on that note, I'll thank all the guests who've joined us on Dr. Speak. Thank you, Dr. Ghanshyam Pangte, Dr. Manish Kanpal, Professor Neeraj Gupta, and Dr. Akshay Kumar for having joined us. And a lot of questions came in on social media as well as a lot of callers also called us with their questions. Thanks to all of them. We couldn't accommodate all the questions today, but we'll be doing that in subsequent editions of Dr. Speak and on other shows as well. Rest assured, thanks for watching. Namaskar. Namaskar.